फैमिली, वेलकम अगेन टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हमारी ट्रेनिंग होने जा रही है, उसके लिए ये ब्लॉग होने वाला है। तो अभी आप एंड तक देखना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जस्ट ये इस ब्लॉग में स्टार्ट कर रहे हैं अर्जेंटली, क्योंकि यार हमें जाना है सेमिनार हॉल में और इस मोमेंट को हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसे कैप्चर करना है, तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो चलो चलते हैं सेमिनार हॉल में। पता है सुबह तो एक जीना नहीं चढ़ा जाता है, लेकिन अभी 3 जीना की चढ़ाई कर ली और सर ने बोला भाग के जाओ, सीट फुल हो जाएंगी। तो बस स्पीड देखो, हमें सबसे टॉप फ्लोर पे आ गए। अभी तक तो कभी नहीं है, अब आ गए। खैर वाह, क्या व्यू है, आप देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी भागते हुए हम जा रहे हैं। यहाँ पर भी सेमिनार है, पता यहाँ कितना अच्छा व्यू लग रहा है। यहाँ से देखो यार, भागते भागते जा रहे हैं। सीट मिल जाए, हम लोगों को तो मिल ही जाएगी। सो फाइनली यार हम सेमिनार हॉल में आ चुके हैं और अभी हमारा जो सेमिनार है कभी कब ओपन होगा इसका पता नहीं है, बट क्राउड बहुत है, स्पेस एरर आ चुका है। तो यार भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, आप देखते हैं क्या होगा। I feel deeply honored that on behalf of Dr. Verin Saru, Institute of Computer Studies, I, Sakshi Dubey, has got the opportunity to welcome Mr. Vaibhav Upadhyay, the shining star of Dr. V.S. ICS. Sir is one of the alumni of Dr. V.S. ICS, and college is really proud of him for making a place in Google operations as a business continuity senior associate. So, we are very grateful that you are here with us today to share your experience and wisdom. There is something really powerful about shared experiences. You never know how many we can get motivated by your experiences. With this, I request Vaibhav sir to come up on the stage to share his experience and wisdom with us to enlighten the path of our professional journey. Students, please join me to welcome Vaibhav sir on the stage. Hello everyone, so this side Vaibhav Upadhyay. I am here in the 9th batch 2015 and 18 from DC itself, and then I have been also an alumni of batch 2019-21 from MBA from the Rams College itself. But the MBA which is done with me is during my job day later only. So I'll be starting with this, not just my journey itself. I'll be definitely coming to you people also, just to check what are your expectations exactly. At the same time, I will be also checking what are your expectations and what are the doubts you are having itself in the college time, and at the same time what concrete needs you at the same time. So my journey started with the TCS itself, and in the college I got placed in Wipro, Infosys and TCS. But later on I decided to go with the TCS itself, and there I started my journey with the FAB 2019 to till September 2022. After I got an opportunity from Google itself, from the recruiter, that he gave me a call through a LinkedIn and reached me over there. And then I joined Google itself from as a designation of Business Continuity Senior Associate, where I'm handling disaster management and recovery management over there itself. And when I joined the TCS itself, I joined as a developer. But later on, I do not feel myself to be comfortable with the codings and all this stuff. Then I switched the department to the management. So this is the basic introduction of myself to the journey of mine. And coming to college days, obviously college is very important. I don't know guys whether you attend the college regularly or not, but coming to the college has been a very key point to the success itself. Actually, my coding is weak, so I have a problem in solving a pseudocode. So basically, whenever you are going through whenever you got the section of description over here, and at the same time if you got that the pseudocode is going to come up. Actually, there are some options for only copy. But आप बोल रहे हो कि आपको आईडी में जाना ही नहीं है. Yes, sir. I also want to go in government sector. Sir, I have a question. Sorry. It was your dream to go in this sector from the start. No, to be honest, while I was in high school, obviously, like you already, I was seeing my father into central government job, so I always wanted to be a facilitator in that area, where he gets this canteen, the facility, the traveling allowance and everything. So I always been fascinated to go to the government sector.
But after completing my 10th, I was having my cousins who was working in TCS before in other good companies. So I thought, no, I should give a try. Then in 11th itself, I went to Durga Prasad, one of the school is there in Ujjain itself. I joined over there and I selected my subject as multimedia and web technology. And I got myself interested in HTML and CSS. So I thought, no, this is something I am loving it. But while coming to graduation, the first and second year I enjoyed a lot the coding and all. But when I received the Java, as the third year, obviously I'm not sure whether you all guys like Java or not, but for me Java is like Marjava and Majjava. So in the third year when I received this Java, I was very confused. Why should I have joined now? मेरा सब क्या होगा फ्यूचर में? मुझे तो Java आती नहीं है. बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की, बट सच ही पढ़ाते थे मुझे समझ Java. तो अब मैं सबसे बोलूँ सर Java कर तो ले रहा हूँ, पर बेसिक कोड ही कर पा रहा हूँ. तो एक्स्ट्रा कोई कोड आ रहा है तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी सर. रट के ले रहा हूँ सूडो कोड, ये सब पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रांग और फेबुनिकाई सीरीज सर रट के ले रहा हूँ और ड्राई रन भी कर ले रहा हूँ किसी तरह. बट बाद में बड़ी दिक्कत आने लगती सर, मैं कैसे उसको कर लूँ. सर ने कहा ट्राई करो. ट्राई में बहुत किया, जब मन ही नहीं लगा तो कुछ कर नहीं सकते. बट फिर आई बात कंपनीज आना स्टार्ट की, मेहनत करनी पड़ी. बट लग था अच्छा कि जो कोड पढ़ भी गए थे वो एग्जाम में आ गए. और वहाँ साथ में इंटरव्यू में जब उन्होंने ड्राई रन के लिए पूछा तो वो भी कर ले गया, क्योंकि वो समझ गया था दोस्तों और कॉलेज से सबसे फैकल्टी से. तो किसी तरह उसको निकाला इंटरव्यू. बट जैसे ही एक ईयर डेवलपर के रोल पे मेरा कंप्लीट हुआ टीचर्स में, मुझे मालूम चल गया था मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोडिंग नहीं है. मैं समझ गया था वहीं पे कि मैं कोडिंग को लेके लॉजिकल माइंड मेरा शायद उतना अच्छा नहीं था. मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ मैं यहाँ पे, मेरा लॉजिकल माइंड शायद उतना अच्छा नहीं था कोडिंग के काम में. तो मैंने तुरंत MBA अपना मेरा चल ही रहा था अभी विलेंस रोड से, सॉरी डैम से. एंड फिर मैंने वहीं से अपना करियर स्टार्ट किया. मैंने इंटरनल इंटरव्यू दिया टीचर्स में और मेरा PMO एंड PCP. PMO यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, जो आगे जाके प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनते हैं. एंड एट द सेम टाइम PCP आपने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट में मैंने स्विच किया. एंड मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ. फिर मैंने वहाँ पे करीबन 3 years and 8 months वर्क किया. एंड कोइंसिडेंटली मेरे पास लिंक्डइन पे मैसेज आया रिक्रूटर का गूगल से. तो आई थॉट समवन इज माय फ्रेंड, जिसने फेक आईडी बना के मेरे साथ कोई तो प्रैंक कर रहा है. ऑब्वियसली BCA जहाँ से मैंने किया है कॉलेज, ऑब्वियसली कानपुर बहुत नोन है, बट आउट ऑफ कानपुर देयर इज नो वन नोन टू दीस नाम्स ऑफ कॉलेज. तो मैंने उस मैसेज को पूरी तरीके से इग्नोर किया क्योंकि मुझे बट जब गूगल का फोन आया तो ऑब्वियसली मुझे इंटरव्यू देना था. गूगल एक मेरी ड्रीम कंपनी थी IT सेक्टर के फॉर्म में. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एक्सेंचर, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी सब मेरे ड्रीम कंपनी थी. तो अब मैंने दोस्तों को भी बताया, ऑब्वियसली गूगल आई थी. मैंने कहा मैं करियर कर लूँगा क्वालिफाई और तब मैं बताऊँगा किसी को. तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया. तो पहला राउंड आपका जो था वो लिसनिंग स्किल्स था, फिर आपका कम्युनिकेशनल स्किल्स था, तीसरा राउंड आपका था रिटन एग्जाम, 4th, 5th, 6th टेक्निकल राउंड थे. देन 7th राउंड आपका HR राउंड जिसको बोलते हैं, एक तरह से MR राउंड, HR राउंड ये सब थे. तो जब ये सारे राउंड निकले और मेरा 7 सितंबर लास्ट वहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, सब खत्म हो गया. बट उन्होंने कहा ऑफर लेकर मैं आपको 20 के बाद ही दे पाऊँगा. तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं रिस्क नहीं ले सकता अपने करियर के साथ. मैं PwC के साथ चला जाऊँगा, भले मुझे गूगल का ऑफर मिला. मान लो अगर गूगल ने नहीं दिया, क्योंकि IT सेक्टर में ये भी प्रॉब्लम है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप श्योर नहीं हो कि आपका वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, जब तक आप पहले दिन अपनी ऑनबोर्ड ना करा लो अपने आपको. क्योंकि इंटरव्यू निकालना ही सिर्फ नहीं है. अब ऑब्वियसली मैं जब गया, मैं एक BCA और एक MBA कैंडिडेट हूँ, बहुत बड़े कॉलेज से, बहुत ही जगह से नहीं पढ़ के निकला हूँ, और ना ही मेरा उतना अच्छा लॉजिकल माइंड था उस टाइम में कहूँ. बट जब मैं वहाँ पहुँचा, ऑब्वियसली IITs and ITs मेरे साथ थे, उनके साथ मेरा कॉम्पिटिशन था. क्योंकि प्रमोशन के लिए भी आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, नॉट जस्ट बिकॉज कि हो गया अब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं. अब तुम्हारे पास हमारी क्लियर हो गया, बहुत ही बुरी भूमिका चाहता नहीं तो हम क्या करें. हमारे तेरे नाम की भूमिका चाहता अगर रोज करके मारेगा मुझे. नहीं भैया, अरे ठीक है, मैं लिख रहा हूँ पढ़े जैसा ठीक है. बस यही चाहिए था. अधिक सर ये ठीक कराई खुद आ गई अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप. यही तो नेचुरल. हां, इधर पे सफेद की बात हो गई, मतलब नेचुरल ब्यूटी है. हां बताइए आप बोल रहे हैं. ये कोशिश तो नहीं पर है तो उसमें कोई नहीं. पर मैं कहूँगा मालूम है, फोकस कर लो ना, वो इंटरव्यू निकाल के चली जाएगी तो बैठे रह जाओ. ये रोटी सही बनवाएगी फिर, रोटी सही बनवाएगी फिर. तुम तो वैसे सही. तो क्या क्या खाने बनाने दिया जरा बताओ थोड़ा. बहुत बेसिक सा बताओ मुझे, कोई ऐसा नहीं करके बनाने को नहीं आना. दाल चावल रोटी सब्जी में क्या, मुझे सब्जी नहीं. दाल चावल रोटी कौन बना लेते हो? भाई लड़कियां देख लो भाई, रोटी कौन बना लेता है? रोज बनाता हूँ क्या बनाता हूँ? मतलब कभी कभी बना ही देता हूँ. सब्जी क्या मुझे नहीं रहता. सब्जी ऐसे आलू की हो गई, कुंदरू वगैरह और तरोई वगैरह. तरोई को मुझे नहीं लगता मैं पसंद करती हूँ.
पेट पालना है ना, ऐसा उनके लिए तो थोड़ा समाज के तो अच्छा ठीक है, खाना मैं बना लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ आप पहुँचोगे, हाँ इनको पूछे भाई इनका भी खाना पूछ लिया, उसको खाया नाम बता दो मेरा सलमान भाई। प्रबोध पांडे। सर नहीं पंडित तो गिरना सही है, मेरा नाम नहीं तो माना जाए। आगे आप बताएं आप क्या खाना बना रहे थे? मेरे ख्याल से पासपोर्ट में जो होता है पासपोर्ट डाले हो आप? मिक्स वेज बना लेते हैं। अरे और दाल रोटी चावल सब्जी। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ, पैसे बहुत कटने वाले हैं आपको। 17-18 हज़ार से ज़्यादा पीसी वालों को नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने टीचर ज्वाइन किया था सिर्फ हिंदी लैंग्वेज, आपको वर्ड में एकदम क्लियर कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। 12,975 रुपये मुझे पर मंथ सैलरी मिली थी टीचर जब मैंने ज्वाइन किया था, यानी 13,000 भी पूरे नहीं थे। और सेमिनार स्टार्ट है, आप देख सकते हो भैया जो है एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। पर्क्स तो आती है बात, पर्क्स एग्जैक्टली क्या होता है? पर्क्स यानी कि आपको जो फैसिलिटीज वहाँ से प्रोवाइड होती हैं। फैसिलिटीज ऐसे इन टर्म्स ऑफ गूगल में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। सबसे पहले तो आपको बात, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको 1,70,000 इन हैंड आपको रिलोकेशन अमाउंट दिया जाता है, दैट इज अप्रॉक्स 2 लाख एक्चुअली, जो कि आपको 2 लाख करीबन आपको मिलेगा आपके रहने के लिए, आपके मतलब बेसिकली रहने के लिए। दूसरी बात, आपकी कैब फैसिलिटी होती है, सिर्फ 2 पैसेंजर्स अलाउ होते हैं एक कैब में बैठना, यानी कि आपको आने जाने का कन्वेंस भी नहीं देना है आपको। तीसरी चीज, आपको वहाँ पे खाना आपको 4 टाइप का मिलेगा। कुजीन आपकी 4 टाइप की है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज एंड इटालियन। ये 4 आपके टाइप के कुजीन आपको फूड मिलेंगे अनलिमिटेड। फिर आती है वेंडिंग मशीन। कोई वेंडिंग मशीन जानता है आप में से? तो वेंडिंग मशीन आपकी एग्जैक्टली ये होती है, आपके अनलिमिटेड चिप्स, अनलिमिटेड स्नैक्स, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स, अनलिमिटेड मिल्क, अनलिमिटेड फ्रूट्स, अनलिमिटेड आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी सब कुछ बेवरेजेस होते हैं, बेवरेजेस इन सॉफ्ट ड्रिंक, डोंट गो अदर देन दैट। तो आपकी वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी अनलिमिटेड। फिर आती है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की बात, तो 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस आपके पेरेंट्स के लिए आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन यानी प्री। अब आती है अदर फैसिलिटी की बात, तो मेरी शिफ्ट जो है वो 6 बजे की लॉगिन है मॉर्निंग में अर्ली, जिसके लिए मुझे तो अब आती है आपकी बात शिफ्ट की। वहाँ पे हाँ ये आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि आपको जनरल शिफ्ट मिलेगी, यानी मॉर्निंग 9 टू अपैक ईमिया नैप। अपैक में क्या होता है, आपकी मॉर्निंग 6 से आप लॉगिन करते हो और नून 3 तक आप वहाँ रहते हो, ठीक है। फिर आती है बात आपकी ईमिया, दोपहर के 1:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक आपकी ईमिया होती है, ठीक है, यानी ईस्ट पैसिफिक, ठीक है। फिर आती है आपकी नाइट शिफ्ट यानी नॉर्थ अमेरिका, जो कि आपकी नाइट शिफ्ट होती है, यानी कि 9:30 टू मॉर्निंग 6:30, ये 3 शिफ्ट होंगी। बट मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज किया क्योंकि मैं सुबह की आदत थी, पर मेरी मम्मी बड़ी खुश होती, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो वो सोचती है मेरा लड़का बड़ा हो गया, उठने लगा, जिम्मेदारी लेने लगा है, बट उनको नहीं पता है मजबूरी में कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आप क्या है, सुबह 4 बजे लॉगिन होता है, तो आपको सॉरी 6 बजे लॉगिन होता है, तो 4 बजे उठना पड़ता है क्योंकि क्या वापस 5 बजे ही आ जाती है। अब 4 बजे मुझे लगता है आपको सोने का टाइम होता है, किसी किसी का 2-3 बजे लॉग आउट होता है व्हाट्सएप से, राइट। तो ये आदतें सब अपने आप चेंज रहेंगे, तो ऑब्वियसली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको जाके जैसे टीचर से भी डांट खा रहे होंगे, वहाँ पे और अच्छे से लेक्चर होगी, ये भी नहीं आप तो अपने क्लास में आप सर डांट खा रहे हो, वहाँ कलीग्स आपके अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, आप उनके सामने डांट खाओगे। और कभी कभार आपका ये प्रमोशन पे भी इफेक्ट करता है। अब सब लोग सोच रहे हैं प्रमोशन यार कितना ही दे देंगे, 3-4 हज़ार रुपये, उसमें 1,000 काट लें पर जिंदगी जीने दो, ऐसा नहीं है। प्रमोशन अगर बात आती है, मैं टीचर्स में तो बोलूँगा, टीचर्स में क्या था 3 बैंड होते थे, बैंड एज ABC, बैंड एरिया पे प्रमोट, जैसे आपकी रैंक होती 1st, 2nd, 3rd, तो वैसे ही वहाँ पे ABC होता था। तो ABC आपको फाइनेंशियल ईयर मिलता था। फाइनेंशियल जब आपने अकाउंट पढ़ लिया, फाइनेंशियल ईयर सबको ये मत सोचिएगा कि आप अपने कॉलेज के टॉपर हो, आप वहाँ जाओगे आप तो वहाँ भी रॉक करोगे, वहाँ पे दूसरे कॉलेज के भी टॉपर होंगे आपके साथ, मानते हो इस चीज़ को कि नहीं? तो मतलब मैं सबको जानता ही, मैं कोर्स नहीं करता, एसपी सर के नाम से तो नहीं जानता, पर हाँ ये जानता था कि तमाचे मारते पक्का बहुत रहेगा, तो बहुत डर था। अब कई बता रहे दीजिए। तो अब उसके बाद जब ये हुआ, तो मैं फोर्थ सेमेस्टर जब आया तो मैंने कहा मेरी जिंदगी चौपट, ये तो मेरे सेक्शन में ही पढ़ा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो फोर्थ सेमेस्टर जब पढ़ाने लगे, अब उनका लंच के बाद तुरंत पीरियड होता था, लंच आधे घंटे का होता था, राइट, अभी यही होता है। तो 15 मिनट के अंदर लंच करके मैं 15 मिनट रिवाइज करता था, मुझे मालूम था अभी मेरी बहुत थकाने वाला है, और मेरा हमेशा रोल नंबर पता नहीं सर के मुंह पे रटा रहता था, 66 रोल नंबर खड़े हो जाएंगे।
अब मुझे लगा था कि अब मेरा क्या होगा, अभी मेरी बेइज्जती करेंगे अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो इनको। बट नहीं, सर को आंसर दे लेता था, पर डर जरूर रहता था इस चीज़ का कि हाँ, पर वो गलत नहीं कर रहा, वो इसलिए कह रहा है कि आपका रिवीजन पीछे आप करते रहो, वो डर इसलिए बैठा है, तो वो बिना मारे वो डर है, अगर मारे तब क्या डर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, और बहुत ही अच्छे फ्रेंडली टीचर भी हैं, बहुत ही अगर मिलो बहुत फ्रेंडली टीचर भी हैं। आज भी सर अच्छा मेरे लिए पर्सनली मैं सर के साथ ट्रिप होके आया हूँ, ऋषिकेश गया था, सर के साथ तो वहीं फ्रेंडली टीचर होगा, और वैसे भी सर से बहुत अच्छी बात हुई थी पहले भी, आज भी होती है। रही बात सलील सर की, तो सलील सर कभी कभार बहुत मीठे मीठे नहीं आपकी बॉन्ड लगा देंगे, आपको पता सीरियसली बात करेंगे अचानक से मजाक में बोल रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा, लगेगा अभी तो मेरी बॉन्ड लगा के अचानक से मूड में हंसने लगेगी। तो लेकिन सर तो पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, तो पढ़ लिया कैसे वो बहुत अच्छे। कभी दो टीचर से एक्सपीरियंस तो नहीं, हाँ टीचर पॉजिटिव ऐसे मिला हूँ, ऐसे सब अच्छे, बाकी पढ़ाई के मामले में ऑब्वियसली वो पढ़ाते तो ऑब्वियसली अच्छे, बट किस तरह से पढ़ाते ही नहीं पता मुझे। तो ये दो टीचर से एक्सपीरियंस रहा है, साथ में दोनों टीचर से पढ़ा हूँ, सलील सर से और एसपी सर से, ये एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे टीचर है। उधर बस उधर इसलिए कि तुम लोग पढ़ो और कुछ नहीं, और कौन से बात करें। ठीक है, अब आते हैं सीवी में, तो सीवी का A4 शीट के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ये नेम ऑफ द स्टूडेंट का भी होगा, जब सबका होता है सब लोग फोटो नहीं आते हाथ कॉपी पेज में डोमेन, ये आपका सिंपल सा नाम होना चाहिए, प्लीज कोई सुपरस्टार हीरो पापा के ऊपर ये नॉल कुछ नहीं लिखना है, प्लीज नंबर रिक्वेस्ट है। फिर आता मोबाइल नंबर, प्लीज एक और बात, अल्टरनेट नंबर जरूर रखिएगा, कभी कभार आप जिसके पास अल्टरनेट नंबर यूज कर लेता हूँ, तो अगर मोबाइल नंबर जो आपने लिखा है प्लीज अपना फोन एक्टिव रखिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो आप, और प्लीज उसको परमानेंट नंबर रखिए, प्लीज ये 2-2 महीने 3-3 महीने से चेंज करने का मत रखिए, एक नंबर परमानेंट बना लीजिए अपना, बहुत हाई टाइम है आपका ये, आपका एक परमानेंट नंबर होना बहुत जरूरी है करियर में। तो आप अपना नंबर लिखोगे कॉमा, आप अपना दूसरा नंबर लिखोगे तो आपका दूसरा नंबर हो, दूसरा नंबर ऐसे, अगर आपका दूसरा नंबर नहीं है उस केस में अगर नहीं है कोशिश करना तो हो जाए, अगर नहीं है तो पेरेंट्स में या भाई बहन में जिनको लगे कॉल उनको उठाने के, वो मुझसे डायरेक्ट बात करा देंगे, तो उनसे आप बोलते उनका अल्टरनेट नंबर लिखवा दें, ठीक है। और क्लियर, फिर इंस्टीट्यूट डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एकेडमिक ईयर 2021-24 राइट, यूनिवर्सिटी CSJMU फुल फॉर्म में छत्रपति शाहू महाराज, नॉट शॉर्ट, सीवी में कभी भी शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन मत यूज करना प्लीज, या एंड का सिंबल भी तो सब लोग ऐसे बना दे तो वो मत बनाना, क्योंकि रिक्रूटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो HR यूनिट में होता है और HR में बहुत बेसिक सिखाया जाता है उनको भी कि ये एप्लीकेशन और ये सब नहीं यूज करने हैं। फिर आता है परसेंटेज फिल नाउ, जो अपने परसेंटेज रहे होंगे अभी तक। फिर आता है अपने ट्रेनिंग, ऑब्वियसली कॉलेज से बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी होंगे, कॉलेज में बहुत ऑर्गेनाइज कराता है सर्टिफिकेशन एंड ये सब चीज़ें, तो आपके पास होगा, ये आपको उस तरह देखना है, फॉर एग्जाम्पल सर्टिफाइड इस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से भी आपने लिया है, फॉर एग्जाम्पल सर्टिफाइड इन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से आपने एक्सेल का सीखा है, वो लिखोगे, पर जो कंपनी। सो फाइनली हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई और हम लोग अभी निकल आए, और बच्चे जो हैं वो अंदर हैं, लेकिन हम लोग निकल आए यार। सर खड़े हुए तो मैंने देखा नहीं, ठीक है शांति हुई तो हम ही लोग अभी निकले, बट हमारी ट्रेनिंग ओवर हो गई है, चलो बाहर चलते हैं फिर बताते हैं कुछ। तो बस जा रहे हैं नीचे, और पसंद आया होगा यार वीडियो, तो इतनी मेहनत से बनाया है, इतनी मेहनत से बनाया तो पसंद तो आया होगा, इतनी जल्दी जल्दी में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था ना यार, पूछो मत। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार इन्फॉर्मेशन इतनी रखते हैं, एंड करते हैं ब्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।